ان کا کہنا ہے کہ ہماری آواز ایڈمنسٹریشن تک پہنچے, DC ڈوڈا تک پہنچے اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سر تک پہنچے. اور دکھائے ہیں اور میپ دکھایا ہے. اس میپ میں جو انہوں نے ہمیں کٹھل دکھایا وایا کٹھل, اور کٹھل اس روڈ میں جو انہوں نے لی ہے لنک روڈ, اس لنک روڈ میں وایا بھی بڑی معتبانہ گزارش کرتے ہیں کہ جو آپ نے یہ یوں اس میں چینجنگ کی ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں, ہم اس کے خلاف بھی نہیں ہیں. اب جو ٹانٹا سے درمن کے لیے جا رہی ہے روڈ, وہ 8 کلومیٹر ٹانٹا کوٹا ٹاپ تک پھر رہے گی ایڈمنسٹریشن سے, ہمارے ایکسین RNB گندوں سے, SDM صاحب ٹھاٹری سے, تحصیلدار صاحب کہرا سے اور DC صاحب سے کہ ٹانٹا درمن جو روڈ تھی وائے کٹھل تھا اس میں. السلام علیکم, آداب ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت TLR یعنی کہ دا لوکل رپورٹ ندیم میر کے ساتھ. ہم اس وقت موجود ہیں ضلع ڈوڈا کے تحصیل کہرا علاقہ پنچایت ٹانٹا کے اندر. ناظرین, آپ جو اس وقت میرے پیچھے یہاں پر جمع ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں, ناظرین اگر آج کل کے ہم ڈیجیٹل انڈیا کی بات کریں تو ہر ایک گاؤں میں روڈ ہیں, بجلی ہے, پانی ہے. لیکن اگر ہم یہاں کی پنچایت کی بات کریں, علاقہ پنچایت ٹانٹا کی بات کریں, یہاں پر کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پر روڈ بھی ابھی نہیں ہے اور بجلی کی بھی پرابلم ہے اور پانی کی بھی پرابلم ہے. یہاں کے ان لوگوں نے ہمیں یہاں پر بلایا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں روڈ کی ایک پرابلم ہے. مزید ہم یہاں کے مقامی لوگوں سے بھی ہم جاننا چاہیں گے جنہوں نے ہمیں یہاں پر بلایا ہے. یہاں کے وارڈ ممبر ہیں اور یہاں کے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, جناب شاہنواز میر صاحب ہیں, اور یہاں پر برہان احمد قاضی بھی ہیں, اور محمد یاسین میر بھی ہے, اور بہت سے لوگ یہاں پر ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پر بلایا ہے. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا مسئلہ ہے روڈ کے بارے میں اور کیا کچھ آپ ایڈمنسٹریشن تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں. مزید ان سے ہی جاننا چاہیں گے. شاہنواز میر صاحب, سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ ہمیں بتائیں آپ نے ہمیں یہاں پر کیوں بلایا اور اتنی عوام آپ نے یہاں پر کیوں جمع کی. سب سے پہلے ہم آپ کے چینل کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پہاڑی علاقے میں آ کے اور پہاڑی کے لوگوں کا جو مسئلہ مسائل ہے اس کو حل کرنے کے لیے, اس کو آگے پہنچانے کے لیے, اس آواز کو آگے پہنچانے کے لیے آپ نے کوشش کی اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں. سب سے پہلے ہماری اپیل رہے گی ایڈمنسٹریشن سے, ہمارے ایکسین RNB گندوں سے, SDM صاحب ٹھاٹری سے, تحصیلدار صاحب کہرا سے اور DC صاحب سے کہ ٹانٹا درمن جو روڈ تھی وائے کٹھل تھا اس میں, لیکن ٹانٹا درمن کا جو کام چل پڑا اور 5-6 کلومیٹر تک وہ روڈ آگے چلی بھی گئی ہے, لیکن وائے کٹھل کا جو لنک ہے وہ انہوں نے نہیں نکالا ہے. اصل میں روڈ کو جانا تھا ٹانٹا سے کٹھل, کٹھل سے درمن, تب بھی جا کے اس کا وایا نام پڑا تھا. لیکن انہوں نے بائی پاس جو روڈ لی ہے, جو کہ روڈ ڈائریکٹ درمن کے لیے گئی ہے, اور کٹھل کو چھوڑا گیا ہے. کٹھل کے ساتھ یہاں کشٹھاوا تھا, بنی تھا, ہوجا تھا, بہت بڑا ایریا جو ہے, اور اس میں لوگوں کو جو پرابلمیں تھی, ہماری ڈلیوری کیسز ہیں, ہمارے اولڈ ایج ہیں جو بیمار رہتے ہیں, جن کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اس پہاڑی میں آج کل برف بھی شروع ہو گئی ہے اور لوگ پرابلم میں ہیں اور مشکلات میں ہیں. اگر دیکھا جائے گا تو اس پلان کو اگر دیکھا جائے گا جو روڈ کا بنا ہوا تھا, تھوڑا کیمرہ مین دکھائے گا آپ کو, کنسٹرکشن آف لنک روڈ فرام ٹانٹا ٹو درمن وائے کٹھل تھا, اور اس میں انہوں نے سیدھا ڈائریکٹ ٹانٹا سے درمن لیا ہے روڈ. یہ ٹانٹا سے آنی تھی پہلے کٹھل, کٹھل سے ہو کے جانی تھی درمن, پھر یہ وایا کا جو تھا مسئلہ, پھر وایا کا مطلب رہتا, لیکن انہیں وایا کو چھوڑ ہی دیا, انہیں بائی پاس روڈ کو لیا ہے درمن. اور یہ جو کٹھل کا ایریا ہے اس کے ساتھ یہ وارڈ نمبر 1 کشٹھاوا ہے, آگے بنی ہے, ان لوگوں کو بھی یہاں سے سہولیات ہونی تھی. اگر روڈ کٹھل میں پہنچتی تھی اس کے بعد آگے اس کی سروے بھی ہوتی تھی کشٹھاوا کی, اس کے بعد بنی اور آگے ترہنکا روڈ سے ٹچ ہونی تھی. اور یہ آدھی پنچایت جو ہے اس وقت, آدھی پنچایت جو ہے اس وقت انہوں نے محروم کر دی. اور یہ جئی صاحب, آپ کا کہنا ہے, آپ کے کہنے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید محکمے نے مل جل کر رقم کھائی اور بائی پاس ہی روڈ کو لیے. میپ کو دیکھا جائے گا تو میپ انہوں نے لگانا تھا ٹانٹا ٹو کٹھل, کٹھل سے پھر درمن. یہ ٹانٹا سے ڈائریکٹ انہوں نے لیا ہے شارٹ کٹ نکال کے اس کو درمن کے لیے, لیکن جو یہ وایا کٹھل تھے, یہ وایا کٹھل کہاں گیا. اور ہم DC صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ وایا کٹھل جو انہوں نے چھوڑا ہے اور اس میں کام نہیں لگا اور نہ لگا رہے ہیں, اور اس لنک کو انہیں چھوڑے, وایا کو چھوڑ ہی دیا ہے, تو انلیگل طریقے سے جو روڈ بنی ہے. تو ہماری گزارش رہے گی DC صاحب ڈوڈا سے کہ وہ اس پہ فوری طور پہ ایکشن لیں اور اس ٹانٹا اور کٹھل روڈ کو ایک 15 دن کے اندر اندر اس کا کام شروع کرے تاکہ عوام کو جو اس سے راحت ملے.
तो नाजरीन, शाहनवाज मीर का इनके कहने से ऐसा लगता है कि जहाँ से सर्विस थी लिंक रोड टांटा तो द्रमनबाला लिंक रोड की जो सर्विस थी उसमें वाया कुठल था, लेकिन इनके कहने से ऐसा लगता है कि R&B डिपार्टमेंट ने शायद मिलजुल कर और उस रोड को बाईपास लिया, और जो वाया कुठल इस कागज़ों में इन्होंने हमें जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं और मैप दिखाया है, इस मैप में जो इन्होंने हमें कुठल दिखाया वाया कुठल, और कुठल इस रोड में जो उन्होंने लिया है लिंक रोड, उस लिंक रोड में वाया कुठल नहीं है। और मज़ीद यहाँ पर भी जो यहाँ पर जमा हुए हैं इनसे भी हम जानना चाहेंगे ये क्या कुछ कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक क्या कुछ आवाज़ ही कहना चाहिए। बुरहान भाई आप भी बताइए। सबसे पहले हम आपके चैनल के मशकूर व ममनून हैं। जो चैनल जो है एक चैनल का काम कर रहा है, हम तक हमारी बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए हम बहुत ज़्यादा मशकूर व ममनून है कि आपने अपना वक्त निकाल कर हमारे पास आए। तो हमारा मुद्दा, हमारा मकसद यहाँ पे जमा होने का बस यूं ही है कि 12 किलोमीटर रोड 4 साल पीछे 2018 में सेंक्शन होती है, जिसका नाम टांटा द्रमन के बजाय टांटा वाया द्रमन रखा गया था, और इसी नाम से वो रोड 12 किलोमीटर सेंक्शन हुई, जिससे 2018 से आज तक 2022 ख़त्म होने को है, मतलब नवंबर चल रहा है, 2022 भी ख़त्म होने को है, अब तक जो है वाया कुठल का काम अब तक नहीं हुआ है। एक टेंटेटिव सर्वे सुनने में आया था कि 1.5 किलोमीटर हुई है, लेकिन अब तक जो है उसकी जो है कहा जाता है कि अब तक उसमें परमानेंट सर्वे भी नहीं हुई है। वहाँ तक कि जो द्रमन वाला काम है वो भी रुका हुआ है। हम उसके ख़िलाफ़ नहीं है, उन्होंने जो है कहीं बाईपास ही निकाली है वहाँ से, और जो कुठल से टच नहीं हो रही है। कहा जाता है, कहने लगे वो कि हम जो है कुठल के लिए लिंक दे देंगे एक, तो हम उससे राज़ी हैं, हम द्रमन के ख़िलाफ़ नहीं हैं। द्रमन वालों ने जो रोड निकाली है हम उसके साथ हैं, हमारे लिए फ़ायदा है उसके लिए। अब हमारी गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से, DC साहब डोडा से, IDM साहब ठाठरी, और हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीज़न गुंदो से मुअद्दबाना गुजारिश है कि और BDC साहिबा जो हमारी हैं कहरा की, उनसे भी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि जो आपने ये यूँ इसमें चेंजिंग की है, हम इसके साथ हैं, हम इसके ख़िलाफ़ भी नहीं हैं। अब जो टांटा से द्रमन के लिए जा रही है रोड, वो 8 किलोमीटर टांटा कोटा टाप तक पहुंच रही है, ईदगाह तक 8 किलोमीटर पहुंच रही है, और 1.5 किलोमीटर की सर्वे जो है टेंटेटिव कुठल तक भी की गई है। अब जो है आगे से और 1.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर और बचता है। हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है कि उस 2.5 किलोमीटर को जो है कुठल से एक्सटेंड किया जाए, आगे किया जाए, जो कि वो पूरा प्रोजेक्ट 12 किलोमीटर बनेगा, जिससे फ़ायदा जो है हमारे एक मोड़ा गनुड़ी आता है, कुशिठवा आता है, बन्नी आता है, जिसमें लगभग 4000 लोगों को फ़ायदा होता है। हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जो है जल्द अज जल्द, कम से कम 4 साल के बाद भी जल्द अज जल्द, हम कह रहे हैं कि इसमें जो है वो सर्वे का काम करें और वाया कुठल पे काम लगाएं, और एक्सटेंड जो सर्वे है कुठल से आगे जो 2.5 किलोमीटर बच रहा है कोटा टाप तक, वहाँ से द्रमन से कोटा टाप 8 किलोमीटर और फिर से 4 किलोमीटर, जिसमें 1.5 किलोमीटर की सर्वे हो चुकी है कुठल तक, उसको भी एक्सटेंड किया जाए, और जल्द अज जल्द टांटा से जो है कुठल तक काम, और फिर कुठल से जो है एक्सटेंड करके आगे तक 12 किलोमीटर प्रोजेक्ट तक 12 किलोमीटर प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया जाए। हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है। तो नाजरीन, इन्होंने अभी एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहा कि जो सर्विस इलीगल तरीके से जहाँ से सर्विस थी वहाँ से रोड नहीं बनी है। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहा, जो इन्होंने हमें मैप यहाँ पर दिखाया इसमें वाया कुठल हैं, लेकिन वो रोड वाया कुठल तक नहीं पहुंची है। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहा कि रोड की सही सर्विस होनी चाहिए और उसका काम भी जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। और मज़ीद भी है यहाँ पर एक मोहम्मद यासिर मीर, ये क्या कुछ कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक, क्या कुछ आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। यासिन साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो कि सर्विस जो इन्होंने शाहनवाज मीर साहब ने, बुरहान साहब ने जो बताया कि सर्विस बिल्कुल इलीगल तरीके से खिलाफ हुए हैं, जहाँ से सर्विस की थी वहाँ से रोड नहीं निकले हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे। तो सबसे पहले आपके चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने के लिए अपना टाइम निकाल के यहाँ आए हुए हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, रोड जो है ये हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, कुछ भी है, हर एक के लिए बुनियादी
जो है सहूलियत जो है, बुनियादी सहूलियत ये हर एक के लिए है, लेकिन इसमें जो है वह कुठल जो इसमें कट किया गया है, मैं ये नहीं जानता हूँ किस वजह से इसको कट किया गया है, ये डिपार्टमेंट ने किस हिसाब से, किस रूल से इसको चेंज किया। मैं ये चाहता हूँ कि इसको जो है ईमानदारी से जो इसकी सर्विस है उस पर काम लगा दिया जाए, जो भी इसकी सर्विस पहले की गई है उस पर जो है इसको काम लगा दिया जाएगा। और मेरी मौदबाना गुजारिश रहेगी डीसी साहब डोडा से या बीडीसी चेयरमैन, हमारे डीडीसी चेयरमैन है, ये डीडीसी मेंबर हैं, उनसे भी गुजारिश रहेगी कि इस पे काम लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़ी इलाका है। अगर हमारा कोई बीमार होता है या फिर डिलीवरी केसेस होते हैं तो हम जब तक उसको उठाकर नीचे, जब तक हम रोड तक लेके जाते हैं उसको, तब तक उसकी या तो डिलीवरी हो जाती है या फिर मौत भी हो सकती है, क्योंकि रोड जो है हर एक के लिए सहूलियात है। तो मेरी मौदबाना गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको जल्द से जल्द काम लगा दिया जाए। तो नाजरीन, आप सभी ने इनके ज़बानी सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा। जो आप मेरे हाथ में ये कागज़ देख रहे हैं, ये एक पूरी फाइल पड़ी हुई है, पूरी रोड के डॉक्यूमेंट्स हैं। इनके कहने से, इनके बातों से ऐसा पूरा हमारे सामने पूरी तफसील से बात हमारे सामने आई। इनका यही कहना है कि जो रोड टांटा टू द्रमन वाला थी उसमें वाया कुठल आता था, उसको डिपार्टमेंट ने मिलजुल कर उसको बाईपास ही लिया है, उसमें कुठल टच नहीं किया है। जितनी आप मेरे पीछे ये आवाम देख रहे हैं, तकरीबन 10-15 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जमा हैं। इनका कहना है कि हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे, डीसी डोडा तक पहुँचे और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सर तक पहुँचे और एसडीएम ठाठरी तक भी पहुँचे। इन्होंने अपनी आवाज़ एसडीएम ठाठरी तक पहुँचाई, तहसीलदार कहारत तक पहुँचाई, लेकिन उन्होंने इनको नज़रअंदाज किया। मुझे अफसोस होता है कि इलाका पंचायत टांडा के लोगों को हर बार हर एक जगह पर नज़रअंदाज क्यों किया जाता है। और मुझे उम्मीद है कि डीसी सर इस वीडियो को देखेंगे और इन आवाम जो इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, इनके आवाम का मसले का हल कोई निकले। और एसडीएम ठाठरी से भी मेरी गुजारिश है कि सर इस आवाम का कोई हल निकाले, जो रोड बाईपास निकले हैं उस पर भी थोड़ा तवज्जो दीजिए मुझे इजाज़त द लोकल रिपोर्ट के साथ। शुक्रिया, बने रहे ऐसे मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।